Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and I am here again with a new chapter. Chapter number 16 of class 8. So the name of the chapter is Play with Numbers. Chapter number 16 of class 8. So children, this is an introduction video. In this video we will be covering all the topics, all the concepts that will come up in this chapter, so that when you will solve the exercise it will be very easy for you to solve it. Okay, and this chapter is not a very difficult chapter. जैसे कि हमने मेन चैप्टर्स भी करे हैं, मेंसुरेशन, linear equations in one variable and factorization. This is a very basic chapter and it's like a fun chapter. जैसा कि इसका name है playing with numbers, ऐसा ये chapter भी है. It's a very easy and simple chapter. Okay, so let's start with the introduction of this chapter now. Playing with numbers, chapter 16, class 8. This is an introduction video. So, what are digits? Digits क्या होती हैं? A number is formed through digit. कोई भी number अगर form होता है तो वो form होता है कुछ digits से, right? If I take an example and I write a number 64, so we call it a two-digit number. Right, this is a two-digit number. This is ones place and this is tens place. ठीक है, this is a two-digit number. And now, if I bifurcate this number, so ये हम कैसे लिख सकते हैं? 60 plus 4. 60 plus 4 will also give us 64 only. Okay, and 60 can be further bifurcated as 6 into 10. 6 into 10 is 60. And 60 plus 4 is 64, right? So it means एक नंबर जो हमारे पास टू डिजिट नंबर है उसको हम ऐसे बाइफरकेट कर सकते हैं. इट डजेंट मैटर यहाँ पे 64 है, कुछ भी हो, यहाँ पे 98 हो, 72 हो, एनीथिंग, इट कैन बी बाइफरकेटेड लाइक दिस. सो व्हाट वी कैन राइट दिस एज इज, ये जो 6 है इसको हम a ले लेते हैं एंड ये जो 4 है इसको हम b ले लेते हैं. ठीक है, सो कोई भी टू डिजिट नंबर है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सो दिस इज a एंड दिस इज b. सो a into 10 प्लस b, ऐसे हो गया ये. सो दिस कैन बी रिटन एज 10a प्लस b. तो ये हो गई हमारे पास एक फॉर्म टू डिजिट नंबर की. आई टोल्ड यू इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ 64 ही ऐसे लिखा जा सकता है. 10 into 6 plus 4, ऐसे कोई भी डिजिट नंबर हो वो ऐसे लिखा जाएगा, बट इट शुड बी अ टू डिजिट नंबर, राइट? सो चिल्ड्रन, व्हाट इज अ डिजिट? नंबर्स आर फॉर्म थ्रू दीज डिजिट्स. डिजिट्स क्या हो गई? 0, 1, 2, 3, ये सेपरेट डिजिट्स हैं और इनसे हम नंबर फॉर्म करते हैं. ठीक है, सो टू डिजिट नंबर अगर हम फॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम इस वे में फॉर्म करेंगे, 10a प्लस b. ये हमने कैसे निकाला? c. 64 कैन बी रिटन एज 60 प्लस 4 एंड नाउ 60 कैन बी रिटन एज 6 into 10. सो इट मीन्स जो टेंस प्लेस पे होता है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करते हैं एंड जो वंस प्लेस पे होता है वो एज इट इज ऐड हो जाता है. सो 10a प्लस b, राइट? नाउ और ये ए बी जो था इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, सो नाउ दिस वाज. अब नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. अब ये 64 था, अगर मैं बात करूँ 23 की, सो क्या हम 23 को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं? सो दिस इज ए and this is
B. So 10 into A plus B. So 10 into 2 is 20 plus 3 is 23. आ गया वही नंबर? Yes. So it means कि कोई भी 2 digit number हो उसको हम इस फॉर्म में we can write 10A plus B. Always remember ये सिर्फ 2 digit number की बात है, ठीक है? Now we'll be coming to a 3 digit number. Let's take one more example first, right? So इधर ही लेते हैं हम एग्जाम्पल 98. 98. So now again 9 is A and 8 is B. So 98 means A के साथ 10 मल्टीप्लाई होता है. So 10 into 9 plus 8. Now 10 into 9 is 90 plus 8 will give us 98. आ गया वही नंबर 98. Okay, so it means any number, any 2 digit number we can form using this 10A plus B. ठीक है? So this was about a 2 digit number. ये 2 digit number का ही format है. Now let's come to a 3 digit number. Coming to a 3 digit number now. Let's take a 3 digit number 293. This is a 3 digit number. ओके, सो इसमें हमारे पास वंस है, टेंस है एंड 100. सो दिस कैन बी रिटन एज 200 plus 90 plus 3, and further 290 can be bifurcated as 2 into 100, 9 into 10. Right? So इसमें हमारे पास this is A, this is B and now this is C. ठीक है? So इसमें ये A है, this is B and this is C. ठीक है? So A into 100 फॉर्मेट क्या होगा इसका? A into 100 plus B into 10 plus C. So 100A plus 10B plus C. This is the format for a 3 digit number. 100A plus 10B plus C. So you see, अगर हमारे पास 3 digit number है, so 200 इधर bifurcate हो जाएगा, 90 अलग and 3 इधर. Now 200 can be written as 2 into 100. 90 can be written as 9 into 10. So 2 into 100, 9 into 10. So ये हो गया 200, ये हो गया 90 और ये हो गया 3. So 200 plus 90 plus 3 will give us 293. So इससे हमारे पास फॉर्मेट आ गया C. अगर 3 डिजिट नंबर है तो 100 से स्टार्ट कर देंगे, 100A plus 10B plus C. ठीक है? So let's write here also 2 डिजिट नंबर था जब हमारे पास. So the format was 10A plus B.
सो अब 3 डिजिट नंबर है, सो द फॉर्मेट इज 100A plus 10B plus C. So yes, 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेट ये था. नाउ 3 डिजिट नंबर, तो उसमें 100 भी आ गया, इंक्लूड हो गया, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. व्हाट वी डिड वाज 293 था हमारे पास, सो 2 कैन बी रिटन एज 200 बिकॉज ये 100 प्लेस पे है, सो इनटू 100. 9 is on 10th place, so into 10, and 3 as it is because it is on 1's place. So ये हो जाएगा 2 into 100 मतलब A into 100 because 2 is A. 9 into 10 means B into 10 plus C. So 100A plus 10B plus C. So now this format is applicable in all 3 digit numbers. It's not necessary कि सिर्फ 293 में ही applicable होगा. So let's take more examples. Let's take a number 998. 998. So in this number 998, we know that this is A, this is B, and this is C. So हमारे पास फॉर्मेट है 100A plus 10B plus C. So 100 into 9 plus 10 into 9 plus 8. ठीक है. So 100 into 9 is 900. Plus 9 into 10 is 90 plus 8. So 900 plus 90 plus 8 is 998. So we got the same number 998. It means that yes, on every 3 digit number this format is applicable. ठीक है. So this was the introduction of, एक तो हमने किया what are digits. digits क्या होती है, जिनसे नंबर फॉर्म होता है, एंड नंबर दैट टू 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, इट डिपेंड्स. सो 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेट किया हमने विच इज 10A plus B. 3 डिजिट नंबर का फॉर्मेट 100A plus 10B plus C. Similarly, if I talk about 4 digit number, वैसे तो it's not in your syllabus, but I think अब आपको क्लियर होगा कि उसमें फिर हम 1000 से स्टार्ट करेंगे. 1000A plus 100B plus 10C plus D. अब उसमें D भी आ जाएगा बिकॉज 4 डिजिट्स है, राइट. सो नाउ लेट्स टेक वन लास्ट एग्जाम्पल ऑफ अ 3 डिजिट नंबर. सो 725. Okay, so now 725 is a 3 digit number. इसमें हमारे पास दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. सो वी नो दैट 100 into A करेंगे हम पहले. सो दिस विल बी 100 into 7 plus 10 into 2 plus 5. So let's solve this. Let's check कि हमारा यही नंबर आता है 725. So 100 into 7 is 700 plus 10 into 2 is 20 plus 5. So 700 plus 20 plus 5 is 725 only. So yes, we got the same number. It means that this format is applicable for every 3 digit number, and this format is applicable for every 2 digit number. Now I hope this concept is clear to you. Now after this we'll be coming to the next topic. Now let's come to the next topic.
So our next topic is value of letter. Value of letter. So what do we mean by this? देखो हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें ऐड एंड मल्टीप्लाई करना होगा, बट उसमें से कुछ वैल्यूज मिसिंग होंगी. सो वी हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज. लेट्स सी हाउ. सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा, बहुत इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं. 4 plus a gives us 6. So if we observe this sum, इस sum में हमारे पास 4 given है, 6 given है, but a is not given. and हमसे क्या पूछा है? Find the value of a. बस यही क्वेश्चन है. सी, अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि 4 में हम क्या ऐड कर सकते हैं कि 6 आ जाए, बिकॉज 6 इज अ ग्रेटर नंबर. सो 4 में हम कुछ ऐड करके 6 ला सकते हैं. सो दैट कुछ इज 2, बिकॉज 4 plus 2 is 6. सो दैट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ a इज 2. देखो बस इतना ही करना था, इसमें ऑब्जर्व करना था और वैल्यू बतानी थी. सो नाउ वी कैन से दैट 4 plus 2 will give us 6. It means that a is 2. बस दैट्स इट. ठीक है. सो ये तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल था. नाउ लेट्स टेक अ लिटिल ट्रिकी वन. 4 a 9 8 प्लस करना है एंड देन वील गेट c b 3. सो दिस इज द सम नाउ. अब इसमें नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ A, B and C. Now this is the question. So children, अब हम इसमें A, B और C की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? We'll be starting from the right. हमेशा हम right से स्टार्ट करेंगे. So right में हमारे पास 8 है और 8 में हमें कुछ ऐड करना है, so that 3 आए. ठीक है. So 8 plus that कुछ equals to 3. So is it possible children? 8 में हम अगर कुछ भी ऐड करेंगे so उससे कम नंबर कभी भी नहीं आएगा, right? अगर 0 भी ऐड करेंगे तो भी 8 ही आएगा, right? 3 will not come. So कैसे सॉल्व करेंगे अब हम इसे? See, 8 में कुछ भी ऐड करने से 3 तो नहीं आएगा, बट 8 में कुछ भी ऐड करने से 13 आ सकता है. ठीक है. अब जो 13 आएगा उसका 3 तो इधर ही आएगा एंड 1 वुड बी कैरी ओवर. नाउ आई होप दिस इज क्लियर. अगर हमें गिवन है कि कुछ किसी बड़े नंबर में कुछ ऐड करके छोटा नंबर ला रहे हैं तो उसका डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम बड़े नंबर में कुछ ऐड करके हम स्मॉलर नंबर कैसे ला सकते हैं. इट मीन्स चिल्ड्रन हम 3 नहीं ला सकते बट हम 13 तो ला सकते हैं, राइट. सो 8 में हम क्या ऐड करें कि 13 आए? सो 8 plus 5 will give us 13, right? 8 9 10 11 12 13. सो 1 2 3 4 5, मतलब 5 ऐड करना है हमें 8 में टू गेट 13. व्हाट डज दैट मीन? दैट यहाँ पे 5 आएगा, मतलब a की वैल्यू 5 है. सो 8 plus 5 will give us 13. 3 यहाँ पे 1 कैरी. आई होप इतना क्लियर है अब आपको. सो विद दिस वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ a नाउ. ठीक है. अब a की वैल्यू कैलकुलेट हो गई. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप. अब यहाँ पे 9 plus 1 है 10. 10 plus 4 is 14. So simply it means that C की वैल्यू 1 and B की वैल्यू है 4. बिकॉज यहाँ पे तो हमें कुछ फाइंड आउट करना ही नहीं था. इन तीनों को ऐड करो और C और B की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, राइट. सो व्हाट वी डिड, 8 में हम क्या ऐड करें कि 13 आए, बिकॉज 3 नहीं आ सकता. लेट्स मूव ऑन टू 13. सो अब 8 में हम 5 ऐड करेंगे देन वील गेट 13. सो इट मीन्स वैल्यू ऑफ A इज 5. इतना क्लियर हो गया इससे. अब B और C बचा. सो नाउ add 9 plus 1 10, 10 plus 4 14. So it means B is 4 and C is 1.
डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो. सो आई डोंट थिंक चिल्ड्रन ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है. एक्चुअली वी आर प्लेइंग विद नंबर्स हियर, राइट. सो कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट ऐड करना है और ऑब्जर्व करके ये बताना है कि इनकी वैल्यूज क्या हो सकती है. ठीक है. अब यहाँ पे तो ए बी सी डिफरेंट डिफरेंट गिवन था. समटाइम्स द क्वेश्चन मे बी लाइक दिस कि हमें ए 2 टाइम्स गिवन है तो उन दोनों प्लेस पे सेम नंबर आना चाहिए, वो थोड़ा और ट्रिकी हो जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दैट थर्ड टाइप. ठीक है. सो आपको समझ में आया कि 8 प्लस कुछ भी करके 3 तो नहीं आ सकता, बट 8 प्लस कुछ भी करके 13 हम ला सकते हैं, राइट. सो coming to the next example. Now let's come to the next example. एक और example लेते हैं अब हम इसमें. I hope this example is clear to you. So next example would be, अब हम multiplication का example लेते हैं. So children, हमारे पास अभी addition का example था. Now we are taking the example of multiplication. So a b into 3 equals to CAB. Yes, CAB. So up now we have to find values of A, B and C. So now अब इस क्वेश्चन में क्या है, B 2 times है, A B 2 times है. What does this mean? इसका मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो यहाँ पे भी आए और यहाँ पे भी आए, सेम नंबर. तो ये थोड़ा सा और ट्रिकी हो गया. अब हमें 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है सो दैट व्हेन द आंसर विल कम वो भी वही नंबर हो, राइट. सो सबसे स्टार्टिंग बेसिक चीज हमारे माइंड में क्या आएगी कि 3 into 0 0 होता है. सो अगर 3 into 0 करेंगे 0 आएगा, वेयर b is 0 b is 0, दोनों में 0 आ जाएगा और आंसर विल बी करेक्ट. So 3 into 0 is 0. So what we can do is b को हम 0 ले सकते हैं. ठीक है. So ये तो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर. बट अब सेकेंड पार्ट में हमें 3 को एक और नंबर से मल्टीप्लाई करना है सो दैट आंसर भी वही नंबर है. सो इफ विल टेक 0 अगेन, अगर हम यहाँ पे अगेन 0 into 0 करते हैं सो ये a और b की वैल्यू तो आ गई बट c की वैल्यू अब नहीं आई. सो इट मीन्स यहाँ तो 0 0 चल गया था बट हियर वी कैन नॉट राइट 0 0 नाउ. सो व्हाट डज दिस मीन कि अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए तो जो 2 डिजिट नंबर दे हमें आंसर में, बिकॉज नाउ वी वांट C and A बोथ. ठीक है. सो 3 1 जा 3 हो जाएगा, नो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3. यस, 2 डिजिट नंबर तो 3 3 जा 9 तक तो हम नहीं जाएंगे. 3 4 जा 12, 4 2 नो, 3 5 जा 15. यस, अगर हम 3 into 5 करते हैं we get 15. So 5 5 आ गया सेम नंबर. So it means A is 5 now. So ये हो गया 5, this is 5, this is 5 and this is 1. C हो गया 1. So now when we multiply 3 into 5 we get 50, right?
सो वी हैव टू अप्लाई द नंबर्स. यहाँ पे एक एक करके अप्लाई करो, चेक करो कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है या फिर नहीं. सो 3 zeros are 0. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ A, B एंड C. सो B की वैल्यू हो गई 0 बिकॉज यहाँ पे 0 0 चल गया, बट अब वो यहाँ पे नहीं चलेगा बिकॉज वी वांट अ 2 digit नंबर इन दी आंसर. सो दैट्स व्हाई हमने 3 5s 15 here. So with this value of A is 5 and C is 1. So this is the answer now. I hope this question is also clear. So कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 times हमें वो same variable दिया हो. So उसमें भी confuse नहीं होना. We have to write same values. दोनों ऊपर नीचे दोनों में हमें same values लिखनी है. ऐसा नहीं है कि हम B की इधर कुछ और value लिख देंगे, इधर कुछ और लिख देंगे. Okay, same values we have to write. So let's take one more example now. Let's take one more example. This would be the last example. I hope now this concept is also clear to you. Then we'll be moving on to our next topic. So in this example we have A. तीनों को हमें add करना है and now we want BA. Right? So this is the question. Now अब हमें इस क्वेश्चन में एक भी डिजिट नहीं गिवन. सो नाउ यू विल थिंक मैम ये तो इम्पॉसिबल है, हम कैसे इसको ऐड कर ए और बी की वैल्यू निकालें. सो द क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. ठीक है. सो कमिंग टू ए. अब अगर हम यहाँ पे a को 0 0 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, बट देन b नहीं आएगा. इट मीन्स 0 वी कैन नॉट टेक. ठीक है. a को 1 1 1 लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और b अगेन नहीं आएगा. सो इट मीन्स 1 b कैंसिल. 2 2 2 6 होता है. यस. सो इट मीन्स यहाँ पे भी सेम नंबर नहीं आ रहा. 3 3 3 3 प्लस 3 प्लस 3 इज 9. अगेन a तो यहाँ पे भी फिर 3 आना चाहिए. 4 प्लस 4 प्लस 4 4 प्लस 4 प्लस 4 इज 12. तो अगेन यहाँ पे 2 आ गया. रॉन्ग. Now 5 plus 5 plus 5 is 15. 5 plus 5 plus 5 is 15. 5 5 5 आ गया यहाँ पे भी 5. So solve. It means value of A is 5. Value of B is 1. ठीक है. Value of A is 5. Value of B is 1. A is 5, B is 1. Clear? ठीक है. सो हमें ऐसे यहाँ पे अप्लाई करके देखना पड़ेगा. 0 से स्टार्ट करो. 1 2 3 4 5 अप्लाई हो ही गया. 5 प्लस 5 प्लस 5 15. ठीक है. सो यहाँ पे भी सारे A 5 5 5. यहाँ पे भी 5. यहाँ पे 1. सो A is 5, B is 1. Now I hope मैंने हर टाइप का आपको एक एक क्वेश्चन करा दिया फॉर एन एग्जाम्पल, सो दैट व्हेन यू विल सॉल्व द एक्सरसाइज इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व इट. ऐसा लगेगा बिल्कुल हम नंबर से प्ले ही कर रहे हैं. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर नाउ. बट अभी हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी रूल्स करने हैं. So stay tuned for my next video. In that video I'll be teaching you all the divisibility tests. Okay, and then introduction would be complete and then we'll be starting with exercise of this chapter. Alright, so stay tuned for my next video, and if you have any doubt, any query, please mention in our comment section below.
Otherwise, practice each and every question. Practice our last chapter, mensuration also. That is very important chapter from the examination point of view. Till then, take care and don't forget to like and share this video. Thank you.